Yes, cameras on, please. Everyone, cameras on. Sit straight with your cameras on and we'll start with the prayer. You can join your hands. Om Hari Om Hari Om सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो. A very good morning, everyone. And yes, how are all of you all feeling? The feel must be at cloud 9, highest level. Okay? So, hands together with me, everyone. Say, is it possible? Say, yes, it is possible. Everything is possible for me. Everyone, sit straight with your spine straight. Spine straight. Yes. Put your hands on your heart and repeat with me. Say with me. Close your eyes softly. Say with me. I am my own brand. I am a magnet to miracles. I am the best. I deserve the best. And congratulations to me because I received the best. Thank you, God, for everything that I have. I know that I am loved, guided, and supported by dear universe. I am a magician. I create magic in my life. I am the creator of my life. I am the architect of my life. If I don't like my story, I am the writer, director, actor of my story. And I can change my story anytime I want. And it's time. This is the time that I want to change my story completely and transform it into something very big. I promise to myself that I am going to live my life very big and beautiful. I am going to give myself, my family, the best life because I know it is possible. Enough is enough. Enough juggling into the same patterns, solving same problems again and again occurring same challenges. Now it's time that I decide to change. I choose to change. I choose to transform my energy. I choose to stop juggling and start evolving because I know money is spiritual. Business is seva. The more I do seva, the more my care account opens and the more my cash account swells. My business, my money is my reflection. The more I grow, I enhance, that much my business, my money grows. I am grateful for the immense value I have and the immense value I can deliver to this world, which is unlimited, and thus I receive the unlimited and unexpected and wonderful and the bestest. Thank you, universe, for all that I have, and all that I have is within me. Open your eyes softly, slowly, and do this activity with me. What you have to do, everyone, kindly turn your cameras on. Be on the camera, okay? Be on the camera, everyone.
So now congratulate yourself that you have promised yourself and you have to stay on your words. You know that सबसे पहले अगर आप ट्रू है अपनी बातों के लिए, then there is nobody who can stop you. Okay, because the first and foremost thing is this only, that you are not being true to yourself. जो आप बोलते हो वो आप करते नहीं हो, but right now you know the magic that अगर आप जो खुद को बोलते हो वो कर लेते हो, so the mind starts accepting it और वो उसी तरीके से काम करने लगता है. ठीक है, और फिर आप एक छोटी से छोटी बात भी बोलते हो ना, वो सच हो जाती है आपके लिए. एंड यू विल रीड इट, अगर आप सर्च करोगे ना तो हमारे सनातन धर्म में भी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप बहुत 3 साल 2 साल तक सिर्फ जो आप बोलते हो वो करते जाते हो, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपका बाय डिफॉल्ट सिस्टम बन जाता है. आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है. ठीक है, सो इट इज पॉसिबल. ऑलराइट, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डू इट. Okay, you have to stay true to your words. So promise yourself that you will stay true to your words. Okay, like जो आप बोलोगे वो आप करोगे. अगर आपने बोला है कि आज मेरे को इतना टास्क करना है, सो आई विल डू इट. अगर आपने बोला है कि आज मैं इतने टाइम विजुअलाइज करूंगा, आज मैं इतना टाइम एफर्मेशंस लिखूंगा, 108 बार लिखूंगा, ठीक है, ऑल ऑफ दो स्टफ. लेट्स से अगर सपोज सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट बना के डालना है या अपना यूट्यूब वीडियो डालना है या सपोज किसी क्लाइंट से बात करनी है, एनी एक्शन वो आप जो बोल रहे हो वो आप वो एक्शन लोगे. ठीक है, ऑलराइट, इट्स जस्ट अबाउट दैट. ओके, जो आप बोल रहे हो वो आपको करना है. ठीक है, ऑलराइट, नाउ कंग्रेचुलेट योरसेल्फ. क्लैप एवरीवन, क्लैप. हाई एनर्जी के साथ जोर से क्लैप. Sit straight. I can see Rakesh sir, you're not sitting straight. Don't be limp and loose. Sit tight and straight, everyone, and start clapping. Amazing. Now do this with me. You know, these are switches. Amazing. Now do this with me. Press your fingertips. Turn on your switches. Energy buttons. These are what? Energy buttons. Turn on your energy buttons. Amazing. Amazing. Yes. Good. Now do this with me. Again, tighten your fist. Open it softly. Once again, tighten it. Once again, open it. Tighten it. Open it. Nice. You're feeling the energy, the vibrations. Now say to yourself, I'm going to channelize this energy. Say to yourself, this is my energy. Once again, close tightly, slowly open and say, this is my energy. And I am going to channelize it. I am channelizing my energy. What I'm doing, I'm channelizing my energy towards the right and bright path. Okay? Say to yourself that you're channelizing your energy towards the rightest and brightest path. Okay? Amazing. All right. किन लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है? Let me know in the chat section. We'll be moving ahead. Last task जो मैंने आपको दिया था, which is day 6, that you have to write complaints. ठीक है, and उसमें जिन लोगों के बारे में आपने कंप्लेन लिखी है, सबसे पहले कंप्लेन लिख लिया तो आधा चीज़ तो दिमाग से निकल ही गया, मतलब आपने उसको रिलीज कर दिया. अब आगे क्या करना है, उस इंसान के बारे में आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बातें तब तक बोलनी थी जब तक न्यूट्रल ना हो जाए. तो सपोज अगर अभी आप उनके लिए न्यूट्रल नहीं हुए हो तो अभी आपको 1 वीक या 6 डे 5 डे जितना भी दिन आपको लगे कि अब आपको लग रहा है कि उनके प्रति आपकी फीलिंग न्यूट्रल हो गई है, ठीक है, तब तक आपको ये चीज़ करनी है. ऑलराइट, क्योंकि आपके साइड से क्लटर क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू नेवर नो, एनर्जीज आर ब्लॉकिंग यू, सम एनर्जीज. ओके, सो यू डोंट हैव टू हैंग. ठीक है, आपको हैंग करने से बचाना है खुद को. ऑलराइट, सो डी क्लटर करना है. ऑलराइट,
क्लियर है? एंड फॉर द न्यू मेंबर्स, आपके लिए जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक ही टास्क है, हमेशा खुद को आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी ये वाला चीज़ बोलो, ठीक है? क्योंकि एक न्यूट्रल जो है ना, एक एक न्यूट्रल जो है, एक न्यूट्रल आपको अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगना और सामने वाले के कर्मों के लिए उसको माफ़ी देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे आपके पूर्व जन्म के ऐसे ऐसे कृत होते हैं ना, जिसमें आपने बहुत सारा ऐसा काम किया होता है जो नहीं करना, जाने अनजाने जितना दिमाग होता है आदमी करता है। तो आपका जो आत्मा है ना, वो पूर्व जन्म के कर्मों से भी बंधा हुआ होता है। और उस चक्कर में भी सेहत खराब होना, या परिवार का सेहत खराब होना, या बाल बच्चों का सेहत खराब होना, या फिर बाल बच्चा का प्रोग्रेस नहीं होना, या कारोबार का प्रोग्रेस नहीं होना, ये होता है। बहुत सारा चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी इंसान के साथ, आप किसी जानवर के साथ, या धरती माँ के साथ, या किसी के संपत्ति पे आपने दखल कर लिया हो, या किसी का चीज़ आपने छीन लिया हो, या किसी का कुछ भी किया हो, तो ये सारे ऐसे हैं बातें जो हमें जाने अनजाने करी है, और उसके भुगताई हम होते हैं। क्योंकि कर्मों का लेखा कभी नहीं जाता, कर्मों का लेखा आपके साथ है, ठीक है ना, और वो आपके साथ ही रहेगा। तो आप उसको रिलीज करेंगे हर वक्त। याद रखिए, ये बहुत बड़ा महामंत्र दे रहा हूँ, रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3, ये सारे मैं वो सब टुकड़े आपको दे रहा हूँ जो एडवांस लेवल पे है। लेकिन आप अगर समझ गए तो आप यहीं पे जीनियस हैं, और नहीं तो फिर बॉस, जब तक कीमत चुकाओगे नहीं, काम आपका कुछ बनेगा नहीं। मैं पहले से बता रहा हूँ, बार बार आप समझिए। जहाँ जहाँ पैसों की बात की गई है मेरे द्वारा, वो सब कौड़ियों के दाम की गई है। ये सारी चीज़ बहुत महंगे हैं। यही चीज़ एक खिलाड़ी को, एक स्पोर्ट्समैन को, एक बिजनेसमैन को, एक आर्टिस्ट को जब लगता है ना, तो हम लोग करोड़ों में चार्ज करते हैं। आपको नहीं पता है कि हम आपसे क्या बात कर रहे हैं। आप लोग अपने छोटे छोटे दायरे के व्यक्ति हैं, आपको नहीं पता है कि आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। यही सेम चीज़ के एक खिलाड़ी से, यही एक सेम चीज़ के लिए एक आर्टिस्ट से, जिसके पैसे रेवेन्यू करोड़ों में आते हैं, वो करोड़ों में चार्जेस पे करता है, नहीं तो उसके चक्कर में उसके करोड़ों रुक जाते हैं। आप लोग को समझना होगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आसमान है, आसमान, ठीक है। तो आपको जो फर्गीव करना है, अपने जितने भी कुल देवी, ग्राम, नगर, शहर, हर तरह के जो जीव जंतु, पशु पक्षी, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, और अपने जाति, कुटुंब और जीव जंतु, हर एक चीज़ से आपको माफ़ी मांगनी है। पिछले 108 जन्म तक के लिए माफ़ी मांग लीजिए आप, ठीक है ना। और अभी के लिए भी आप पूरा एक कीजिए कि अब अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी मैं एक मासूम हूँ, अभी अभी मैं अपने नई इनिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप मुझे, जैसे कि मान लीजिए घर का नींव खोद दिया आपने, है ना, और आपने घर का नींव खोदने से पहले वो सारी बातें नहीं मानी, तो आपने कितने चींटियों के घर उजेड़ दिए, कितने दीमक के घर उजेड़ दिए, है ना। और वो आपको बहुत ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए ज़मीन पे कभी भी कुछ होने से पहले ज़मीन की पूजा कराई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसका बहुत भारी इम्पैक्ट है आपके जीवन पे, क्योंकि हर एक जीव जीव है, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो। अब जैनी धर्म में देखिए, वो एक भी जीव को पहले वो मोर के पंख से हटाते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं। उन्होंने एक भी जीव आपके नाक के अंदर ना चला जाए तो वो नाक में और मुंह में मास्क पहन के रहते हैं। तो बहुत सारे सेंसेबल चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। और जैसे अब कोई अबॉर्शन करवा लेता है, वो बहुत घोर अन्याय पाप हो जाता है। लोग उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, उसका कोई क्रियाक्रम या श्राद्ध नहीं कराते हैं, उनको कभी कोई पितृ को उनको पानी नहीं देते। तो ये सारे बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं, और आज के डेट में घोर अन्याय कर बैठे, और तकलीफें होती है तो बस ऐसी की तैसी हो जाती है। समझ में नहीं आता किस बात से मेडिकल जा रहे हैं, किस बात से पेट दर्द दे रहा है, किस बात से ये हो रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं बहुत बड़ी बात बताया हूँ, बहुत अंदर की बात बताया हूँ। ये सब आपको समझना होगा। एक एक छोटे छोटे चीज़ों का बहुत बड़ा रुतबा होता है। आप लोग मेरी बात से सहमत है तो पहले समझ रहे हैं तो हाथ हिलाइए, ठीक है। इसीलिए एकदम जब भी आप फरगीव करें, दूसरों को भी और अपने आप को भी, और जितने आपसे कर्म हुए उसके लिए भी, तो माफ़ी मांगना ही है, कॉमनली माफ़ी मांगना ही है। एक एक चीज़ को आह्वान करते कि जाने अनजाने में आपका नाम नहीं लिया हूँ और मैंने आपके साथ कोई दुष्कर्म किया है, तो मैं आप प्लीज़ आपसे मुझे माफ़ी चाहिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। कितने बार, है ना। तो आप ऐसे ही गड़सड़ा में भी एक बार बोल सकते हैं कि हो सकता है मैंने इतने सारे नाम लिए और आपका नाम नहीं लिया, तो आप इससे रुष्ट मत होइएगा, मैंने आपसे भी माफ़ी मांगा है, आप मेरी माफ़ी को स्वीकृति दीजिएगा, है ना। और मैं भी उन सब से जिनसे मेरा हार्ट दुखा है या मुझे कोई तकलीफ़ हुई है, मैं उनको भी क्षमा देता हूँ। मैं आज से अपनी नई इनिंग की शुरुआत करता हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, है ना। ये सब बात एकदम बोलना है डेली बेसिस पे, कम से कम 21 दिन का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके जीवन में नयापन आ जाएगा जनाब। ऐसा नयापन आएगा कि आपको नहीं विश्वास है आप कहाँ से कहाँ निकल लोगे। सारे You रुके will हुए uplift yourself, सारे रुके upgrade. हुए काम निकल जाएंगे साहब, सारे रुके हुए काम चल पड़ेंगे, ठीक है ना।
और गरीबों को दान देना और सब कुछ मैं बता चुका हूँ आप लोग को, तो एकदम याद रखिएगा। गेट इट ना? सब कुछ टाइप करें, क्लियर। Yes, clear everyone. Just wait a sec. I'll be switching off my camera. Huh. All right. So what you have to do next is, आंटी यहाँ से ले लीजिए ऐसे। ऑल राइट, सो फॉर द पीपल जिन्होंने डे 5 तक कर लिया है, सो आपको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि जब तक आप कब किसी को माफ़ करते हो या माफ़ी मांगते हो, जब खुद आप अपग्रेडेड होते हो, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन यू विल बी एबल टू रिजॉल्व एनीथिंग एल्स। अब डे 6 में क्या है, जो लोग डे 5 कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनको डे 6 में क्या करना है, अभी आपने दूसरों के लिए कंप्लेंट्स लिखी, ठीक है। अब आपको खुद के बारे में जो आपको लगता है कंप्लेन, वो लिखनी है, ठीक है, डे 6 में। ऑल राइट, कि आपको खुद से क्या क्या कंप्लेन है। कुछ ऐसी चीज़ होती होगी जो दिन भर आपको गिल्ट में रखता होगा कि ये चीज़ मेरे से होती नहीं है, या मैं ये हर बार मेरी आदत है क्यों नहीं छूटती, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ, हर बार मेरे से ये हो ही जाता है। सो एक गिल्ट होता है अंदर में, चाहे कुछ आपको अगेन एंड अगेन कुछ कंप्लेन रहती है अपने आप से, आप वो कंप्लेन्स लिखो, ठीक है। क्लियर है? आपको वो सारी कंप्लेंट्स लिखनी है, ठीक है, एंड पूरा लेट इट आउट, ठीक है। आप पूरे लाइट हो जाने चाहिए, सारे कंप्लेंट्स जितने आपको लगते हैं अपने बारे में, खुद के बारे में, वो सब आप नोट डाउन कर लो पेपर पे। एंड यू नो व्हाट, इट इज़ माइंड राइटिंग। तो जब आप लिख लेते हो ना, तो वन वे यू आर ऑल्सो लेटिंग इट आउट, ठीक है। आप पूरे उसको रिमूव कर देते हो, रिलीज कर देते हो दिमाग से, ठीक है। सो अपने आप को जब तक आप पूरे लाइट फील ना कर लो, तब तक जितना भी आपको लगता है यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट दिस, आपको खुद से ये चीज़ के बारे में कंप्लेन है, वो चीज़ आप पूरा नोट करते जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, मे बी अगर ये चीज़ आपको कुछ टाइम से हो रही है, या कुछ मंथ से हो रही है, या ईयर्स से हो रही है, टाइम मैटर नहीं करता। आपको कभी भी सपोज बचपन में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिस चीज़ के लिए आपको कंप्लेन है, तो वो भी आप लिखोगे, ठीक है। सिर्फ अभी वाली नहीं, कभी भी, मतलब टाइम मैटर नहीं करता। कभी भी जब आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, उस चीज़ को आपको क्लियर करना है, ठीक है। वो कंप्लेन आपको लिखनी है अपने बारे में। ऑलराइट, क्लियर है ये टास्क सबको? अब सी, जो लोग भी नए हैं वो डे 6 नहीं करेंगे, जो डे 1 में है या 2 में या 3 में है, ठीक है। आपके लिए डे 6 नहीं है, क्योंकि ये एक सीरीज चल रहा है, आप बिना पहले एक्शन को लिए आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सो आपके लिए क्या करना है, आपको जो डे 1 में, मैं टास्क रिपीट कर देती हूँ अपने अपने हिसाब से, आपको जो जो टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, आप उसके बाद वाला करोगे, ठीक है। डे 1 वॉज आई एम सॉरी, then your name and then the reason, ठीक है। then please forgive me, your name and then reason why you should forgive yourself, then again thank you, your name and then reason why you should say thank you, then I love you, your name and then why you should say, why you should love yourself, ठीक है। this was day 1। अगर ये आपका हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो आप ये करेंगे। अगर ये आपका हो गया है, देन मूव अहेड इन डे 2, जहाँ पर आप एक्सपेक्टेशंस लिखेंगे, जो एक्सपेक्टेशन आपको दूसरों से हैं, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी उसके साइड से, ठीक है। टाइम डजेंट मैटर, सपोज कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होगा जो आपको लगता है कि उस टाइम पे इसने मुझे सपोर्ट करना चाहिए था बट नहीं किया। सपोज पेरेंट्स के लिए भी होते हैं कि पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, या मेरे को क्रिकेट खेलने जाना था, आज मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर होता, या ऐसा। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं हमारे पास जो जिनका ऐसा पास्ट में था, तो उन्होंने ये चीज़ रिजॉल्व की, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको एक्सपेक्टेशंस लिखनी है, डे 2 वाले लोग जो डे 2 कर रहे हैं। अब डे 3 में जो आ गए, जिन्होंने एक्सपेक्टेशन लिख लिया है, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन को चेक मार्क करेंगे, वो उन एक्सपेक्टेशन को जो वो खुद के लिए फुलफिल करते हैं। सपोज अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं देता, सो पहले आप ये चेक करो कि क्या आप खुद को कॉम्प्लीमेंट देते हो, ठीक है। अगर यस, तो उस एक्सपेक्टेशन पे ऐसे टिक लगा देना है, क्लियर है। और जो जो एक्सपेक्टेशन आप खुद के लिए फुलफिल नहीं करते हो उसको खाली छोड़ देना है। अब आएंगे हम लोग डे 3 में, सॉरी डे 4 में,
ठीक है, जहाँ जो एक्सपेक्टेशन अब खाली छूटी हुई है या जो एक्सपेक्टेशन आपको लगता है कि ये फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, अब आप उनका एडवांटेज लिखते हो। एडवांटेज में क्या है, सी, हर एक चीज का एडवांटेज होता है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन होता तो है। अभी अगर आप अपने सारे चीज जो आपने फुलफिल कभी हुए ही नहीं, उस चीज को आप नेगेटिव साइड से देख रहे हो, तो आपका एक दिमाग का पर्सपेक्टिव है। अब जब आप उसकी एडवांटेज ढूंढने लग जाओगे तो आपका दिमाग का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। जो चीज़ आप इतने दिन से नेगेटिव एंगल से देख रहे थे, अब आपको उसमें पॉजिटिव एंगल दिखेगा, आपका पूरा व्यू ही चेंज हो जाएगा। मे बी आपकी लाइफ का ही पूरा व्यू चेंज हो जाए, यू नेवर नो कौन सी एनर्जी कहाँ पर ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो चीज़ों को जो हो गई उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन एक्सेप्टेंस के बाद ही चेंज आता है, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा स्कूल छूट गया या मेरे फ्रेंड्स छूट गए, अगर इस बात को लेकर के मैं बैठ जाती, क्योंकि पहले मेरे पास उतना दिमाग नहीं था, ठीक है, देन आई बिल्ड इट अप। तो जब आई एक्सेप्टेड इट कि नहीं, इसका तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, एंड आई एम इम्पैक्टिंग सो मेनी पीपल, चेंजिंग सो मेनी लाइव्स, जो पहले पॉसिबल कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो जब आप एडवांटेज ढूंढने लग जाओगे, आपके लाइफ को देखने का पूरा नजरिया, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका डे 4 का टास्क है, जो लोग डे 4 कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो आपकी फुलफिल नहीं हुई, अब आप उसमें एडवांटेजेस ढूंढोगे, एंड हर एक चीज़ का एक एडवांटेज तो होता ही है। एवरीथिंग कम्स विद डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, ठीक है। यिंग एंड यांग एनर्जी, शिव एंड शक्ति, नेगेटिव पॉजिटिव सब में होता है। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि इसका तो कोई एडवांटेज नहीं है। लुक फॉर एडवांटेजेस, ओके, एंड राइट इट डाउन। क्लियर है डे 4 टास्क एवरीवन? एंड जो लोगों का डे 4 हो गया वो डे 5 में आएंगे। डे 5 का टास्क है कि आपको दूसरों से क्या कंप्लेंट्स है वो लिखनी है, ठीक है। और एक बार आपने कंप्लेंट्स लिख ली, पास्ट में हो चाहे अभी हो, जो भी, टाइम डज नॉट मैटर, आपको सारा बस रिलीज करना है जो भी आपको कंप्लेन लगता है, ठीक है। अब उसको न्यूट्रलाइज करना है, जो मैंने बताया कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये उस इंसान को बोल करके, मतलब उस इंसान को ऐसे डायरेक्टली जाके नहीं बोलना है, आपको अपने मन में एनर्जी लेवल पे यहाँ पर बोलना है, ठीक है, लाइक अपने मन पे, ठीक है। सो ये आपको बोलना है जब तक आपकी फीलिंग उनके प्रति न्यूट्रलाइज ना हो जाए। क्लियर? एंड यस एवरीवन, टर्न योर कैमराज ऑन, कैमराज ऑन। सो पापा भी गुस्सा हो रहे हैं आप लोगों के ऊपर, आप लोग कैमरा बंद कर लेते हैं। प्लीज टर्न योर कैमराज ऑन एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, कैमराज ऑन प्लीज। यस, कैमराज ऑन। सो क्लियर एवरीवन, डे 5 एंड टुडे डे 6 जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। डे 6 में है आपके खुद के बारे में जो गिल्ट है, जो कंप्लेन है, जो आप दिन भर सोचते रहते हो कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, नेगेटिव वे में, वो कंप्लेन्स आपको आज रिलीज करनी है, लिखनी है, ठीक है। क्लियर? टास्क क्लियर है? अब बिफोर डूइंग द टास्क we'll do the visualization again. So I'll be turning on the music and you have to sit straight. सबसे पहले rub your hands, okay, again clap a bit and sit straight, like shake your body and like this, थोड़ा मूव करके, ठीक है, मूव करने के बाद स्ट्रेट बैठे, लाइक एनर्जी रेगुलेट होती है उससे, ठीक है। थोड़ा मूव कर ले एंड देन सिट स्ट्रेट। आप लोग एक पोज हमेशा याद रखिएगा, मल आसन पे बैठना है आप लोग को, ठीक है ना? सबके ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ हिलाइए ऊपर। हाँ, मल आसन पे बैठना है आपको। यूट्यूब पे बहुत सारा मल आसन मिल जाएगा। मल आसन पे बैठ के हाथ जोड़ करके पूरा गर्दन चारों तरफ घुमाना है। आप लोग अपनी अपनी एनर्जी लाइन करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप लोग ऊपर आते जाएंगे, और आप लोग अफर्म कीजिए कि आप लोग डायमंड मेंबर है। बिना डायमंड मेंबर का आप लोगों का कुछ होगा होगा है नहीं, बता दे रहे। टाइम पास मत कीजिए, पेमेंट करा के ऊपर आइए और जैसे बताया जा रहा वैसे करिए। घर बेच दीजिए, जमीन गाड़ी बेच दीजिए अगर नहीं पैसा है तो, और जो बोल रहा हूँ वो करिए। अगर आपको वाकई में फरारी में घूमना है और एकदम गारंटी है कि होगा, जो बोल रहा हूँ वो करिए, होगा। ज़्यादा एम बतियाइए मत आप लोग। और मलासन पे बैठ के चारों तरफ गर्दन घुमाइए, एनर्जी अलाइन कीजिए। जैसे मैं एडवांस लेवल पे कोर्सेज चालू करूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा कहाँ से क्या हुआ, जादू हो जाएगा, जादू।
जो काम लोग 15 साल तपस्या करके नहीं करते ना, आप लोग 10 दिन में कर लेंगे। जो जो बता रहा हूँ वो करिए। सुसु करने के बाद 4 कुल्ला, और शौच करने के बाद 12 कुल्ला करना है। ठीक है ना? सारी चीजें जो बता रहा हूँ वो करिए करिए करिए, 100 बार बोल रहा हूँ। सांभवी मुद्रा में बैठना शुरू कीजिए। नाक को देखिए अपने दोनों आंख से, और फिर आंख को बंद कीजिए। क्या समझे? नाक को देखिए दोनों आंख से और आंख बंद कीजिए। ये सारे प्रैक्टिस करते रहा कीजिए। जैसे एडवांस लेवल में आएंगे वैसे मैं आपको ये करूंगा। और मलासन निकाल करके मलासन में बैठिए। रूट चक्र का जब हमने किया था संडे क्लास, तो हमने आपको सारे आसन्स बताए थे। उसमें से मल आसन है, ठीक है। अगर वो क्लास आपके पास है, जो लोग एलएमएस पे हैं, आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वरदान का जो वीडियो था ना, 21 जून वाला, 21 जून वाला वीडियो में मलासन में वरदान बैठी हुई है। वो वीडियो देखिए कहाँ पड़ा हुआ है। आप लोग को ग्रुप में है तो एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। उसमें वरदान मलासन में बैठी हुई है। वो वीडियो में छोटा सा सब क्लिप है, सब जोड़ा हुआ है। उसमें त्राटक में वरदान बैठी है, संभवी में बैठी है, सब सब तरह की मुद्राएं है वहाँ पे, जो जो बहुत जरूरी है आपके सेंसेस एक्टिवेट करने के लिए। जो जो काम पहले के ऋषि मुनि 15 साल में करते थे, आप लोग 15 दिन में कर जाइए, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है ना? इसलिए जो बोल रहा हूँ वो करिए। सारी एडवांस लेवल की बातें नीचे उतार के दे रहा हूँ आप लोग को। एंड फॉर ये जो चक्रा क्लेंजिंग भी है ना, इस आसन से आपके चक्रास भी अनब्लॉक होते हैं, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी आपको संडे मेगा क्लास में दे रहे हैं। सो डोंट मिस संडे एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस अभी चल रहे हैं संडे मेगा क्लास में, ठीक है, जो आपको पूरी तरीके से क्लेंस करता है, प्योरीफाई करता है, एंड स्पेशली एक्टिव करता है, ठीक है। लाइक यू नो व्हाट, आर्यभट्ट, भास्कर एंड बहुत सारे ऐसे लोग, चाणक्य। आर्यभट्ट का क्या है, वो ऐसे आसमान में देख करके चीजें बता देते थे कि इसकी इतनी ज्योमेट्री है, ये है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले क्यों होती थी? क्योंकि दे हैड एक्सेस टू सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारे पास है, लेकिन हम उसको एक्सेस ही नहीं करते, ठीक है। सो उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो वही मेगापिक्सल आपकी बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर हो जाती है, ठीक है, डीप हो जाती है। जैसे टुडे माय फादर, पापा हर एक चीज को ऐसे देख लेते, लाइक देख करके पर्सनालिटी समझना। सो इट कम्स विथ प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है। देख करके आप समझ जाते हो, सेंस कर लेते हो, सो आपकी सेंसिंग पावर पूरी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट यू नीड एज वेल, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस डीलिंग्स हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ऑल राइट। Okay, so I am turning on the music. Right now, what you have to do is sit straight, everyone. Sit straight, close your eyes, and right now you have to visualize. Okay? Visualize your best life. Able to hear the music? If you are luxurious house, or to uh, be inside a very big office with firm, lot of employees, impacting lot of people, your best life.
Yes. Were you able to see yourself? Able to see your best self? Maybe. Okay, keep closing your eyes. Maybe you were in a luxurious room, or maybe something like aircraft kind of thing. You're flying in the air, और आप एक अपने खुद के एयरक्राफ्ट से नीचे उतर रहे हो. वहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं आपको वेलकम करने के लिए, आपके भरोसेमंद एम्प्लॉयज़ हैं, कोई आपको बुके दे रहा है, कोई आपको फाइल्स दे रहा है, एंड दे आर ड्राइविंग यू टूवर्ड्स योर ऑफिस. एंड आप अपने ऑफिस में, यू आर गोइंग टू योर ऑफिस इन योर BMW, मे बी योर Mercedes और Rolls Royce. Just imagine the best you can. Imagine that how you are able to empower people. Yes, are you able to see yourself in picture 3D? See yourself in 3D, three-dimensional view. Keep closing your eyes, keep closing your eyes. See yourself sitting in a recliner, your aircraft, or maybe going somewhere in vacation, or doing bungee jumping, or maybe flying in hot balloon, air balloons. Imagine the best you can. Yes, are you done? Are you seeing yourself? If you're done, you can open your eyes. Yes. So, you know why we are doing this? Because our mind, doesn't understand the difference between imagined and reality. So, if you are saying that, or picturing your mind as this kind of stuff, then what it's doing, वो इन्हीं चीज़ों को आपके लाइफ में भी लाएगा. क्यों? Because there is a science to it. वो क्या करता है ना, जैसे अगर आप रेड कलर सोच रहे हो, तो वो रेड कलर को ही देखता है, यानी एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं इसको, जो ऑन हो जाता है.
ठीक है। तो अगर एक चीज़ आपके दिमाग में है, यू नो व्हाट, ये चीज़ सबके साथ होती है, मेरे साथ तो बहुत बार हुई है। एक बार सपोज एक बार जिस चीज़ से मैं अवेयर हो जाती हूँ, अब फिर मुझे वो बार बार दिखने लगता है, ठीक है। इससे पहले मेरे को आज तक नहीं दिखा था। एंड ये चीज़ मैं हर बार अपने भाई को, चाहे मम्मी को या किसी से भी शेयर करती हूँ कि ये चीज़ मेरे को पहले कभी नहीं पता था, लेकिन एक बार जब मेरे को पता चला तो हर बार ये चीज़ आ रही है। तो ये माइंड का खेल है, ठीक है। एक बार जब आप एक चीज़ को देख लेते हो ना, तो वो चीज़ आपके पास हर बार आने लगती है, फिर उसी तरीके का बिहेव, उसी तरीके का माइंडसेट, हैबिट्स डेवलप अपने आप होने लगता है, ठीक है। देर आर 4 थिंग्स, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ठीक है। पहले चीज़ आपके मन में आती है, फिर आपका बुद्धि उसको डिस्क्रिमिनेट करता है कि आपके लिए राइट है या रॉन्ग है, फिर अहंकार में आती है, आप उसको आइडेंटिटी बनाते हो, उसके बाद वो आपके चित्ता में सेव हो जाती है। चित्ता इज़ योर मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जितना आप जो चीज़ आपको चाहिए उसको अपने मन में लाओगे, वो आपकी बुद्धि उसको एक्सेप्ट करेगी, आपके अहंकार में आएगी, ठीक है। अहंकार कुछ गलत नहीं होता, इट्स योर आइडेंटिटी, ठीक है। हम लोग उसको गलत ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ अपनी आइडेंटिटी को ही सब कुछ समझना, वो अहंकार, वो नेगेटिव वे में आ जाता है। लेकिन अहंकार का एक्चुअल साइंटिफिक मतलब है कि इट इज़ जस्ट योर आइडेंटिटी। तो अब उसको आप आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हो, फिर वो आपके चित्ता में सेव हो जाती है। जैसे कि बाइक चलाना, यू नेवर कैलकुलेट कि कब कहाँ पर कितना क्लच, ब्रेक या गियर का शिफ्टिंग है, अपने आप होता है, ठीक है। आप फ़ोन में बात करते रहते हो, अपने घर पहुंच जाते हो। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो चित्ता में वो सेव हो जाता है। तो जो चीज़ आपको क्रिएट करनी है, उस चीज़ को अब आपको सेव करना है। क्लियर? अब आपको जो आपको अपनी लाइफ चाहिए, आइडियल लाइफ, उस चीज़ को सेव करना है, ताकि वही चीज़ आपके साथ हो, उस चीज़ के साथ आप एनकाउंटर होते रहो, उसी हैबिट्स के साथ आप रहो। क्योंकि पहले हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके इंस्टाग्राम रील्स, चाहे फेसबुक फीड, ठीक है, चाहे यूट्यूब का फीड, वो क्या है, आप जिस तरीके का कंटेंट देखते हो उसी तरीके का कंटेंट आपके फीड पे शो करता है। बस उसी तरीके से आप एक बार सर्च करने लग जाओ कि हेल्थ बेनिफिट्स वाले कंटेंट, आपको फिर अगले दिन हेल्थ वाले कंटेंट फीड में शो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस उसी तरीके से है आपका एल्गोरिदम भी, माइंड का भी उसी तरीके से है। आप एक बार उसको एक डायरेक्शन दो, उस पर वो न्यूरल पाथवेज, न्यू न्यूरल सर्किट क्रिएट करता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको उसको वही इमेजिनेशन देनी है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, सो योर राइटिंग वर्क जो आपको करनी है, ठीक है। राइट नाउ आई विल बी एंडिंग द क्लास, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन 9:30, ठीक है। 9:45 9:30 से आपको आ जाना है इन द इवनिंग सेशन, ठीक है, जहाँ पर अगेन डांस के साथ हम लोग एनर्जाइज करते हैं अपने आप को, ठीक है, एक्टिवेट आवर बॉडी। एंड अभी आपको क्या करनी है, 108 बार जो हमने आपको लिखने बोला है, राम या ओम श्रीम ओम, जो मंत्र आप लिखना चाहते हो, ओम एम नमः एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, वो आपको लिखनी है, ठीक है। एंड जो आज आपका टास्क है, अकॉर्डिंगली जो आप जिस भी डे में हो, ठीक है, लाइक डे 1 2 जिस भी डे में हो, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। अपने एक्सपीरियंसेस का वीडियो शेयर करना है। जितने नए लोग हैं वो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करेंगे, अपने लर्निंग्स के ऊपर वीडियो शेयर करेंगे। एंड दिस क्लास इज़ वर्थ 108 रुपीज़, या फिर अगर एक बार में आप पे करते हो तो 2999, ठीक है। तो जो लोग पे नहीं करते, मेक श्योर दैट यू पे एंड देन कम टू द क्लास, ऑल राइट, बिकॉज दिस इज़ अबाउट अगेन ऑनेस्टी एंड योर सेल्फ, कि आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उसकी वैल्यू दे करके उसको आप ले रहे हो, ठीक है। बिकॉज इन द होल क्लास यू हैव रीवायर्ड योर सेल्फ। आज का आपका पूरा दिन इस क्लास के बेसिस पर जाने वाला है। इस क्लास में जो आपने विजुअलाइज किया, जैसे आपने अपने माइंड को प्रोग्राम किया, सो वी आर प्रोग्रामिंग योर डे अल्टीमेटली, ओके। एंड मेक श्योर कि हर पूरे दिन में आप ये एक्शंस लेते रहो, अपने बेस्ट सेल्फ को विजुअलाइज करो, पहले अपनी लाइफ क्रिएट करो, देन उसको लिव करो। कोई भी एक्शन आप ले रहे हो, डज नॉट मैटर, पहले उसका बेस्ट सेल्फ आप विजुअलाइज करो कि ये कैसे, जैसे कहते हैं ना, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, ठीक है। एवरीवन रिमेंबर दिस वन लाइन। तो मनोभूमि में उस काम को सक्सेसफुल मान लो, ठीक है, क्रिएट कर लो कि ये सक्सेसफुल हो चुका है, एंड देन उस काम को करने जाओ। तो एंड ये भी विजुअलाइज कीजिए कि आप सब डायमंड मेंबर्स हो,
ठीक है। एंड आप डायमंड एज अ डायमंड मेंबर आप चीज़ों को कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, एंड लाइक सेल विदाउट सेलिंग, सेल विदाउट टेलिंग, तो ये सारी चीज़ें एज अ डायमंड मेंबर आप कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप एक डायमंड मेंबर हो, ठीक है, सो यू आर लाइक एट द टॉपेस्ट, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें शेयर की जाती है ना, वो नीचे वाले लोगों को कहीं मिल ही नहीं सकता, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ऊंचे लेवल से देखोगे तब जा करके आप अपने आप को मेंटेन भी कर पाओगे, ठीक है। सो सी योर सेल्फ इन योर आइडियल सेल्फ, ठीक है। ऑलराइट, एंड राइटिंग टास्क, अपना पेमेंट का टास्क आपको कंप्लीट करना कल है। भी क्लियर कर दिया था ना कि आपका दिमाग खराब नहीं है, आपकी चीज़ें सस्ती है। क्या बोला मैं? लोग बोलते हैं यार सर वो ऐसे वैसे हो गया, वैसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी चीज़ें कमतरी हैं। आप अपनी चीज़ों को पहले है ना एरिस्टोक्रेट कीजिए। पहले अपनी चीज़ों का आप जो है ना, जो शर्ट पहनते हैं वो शर्ट 6,000 से कम का नहीं होना चाहिए, एडिडास से और नाइकी और रीबॉक से कम नहीं होना चाहिए। पहले वो आप देखिए कि आपका जूता और आपका मोजा और आपका रुमाल कितने रुपए का है। जब तक आप अपनी चीज़ों का रेट सही नहीं करेंगे, ब्रांडेड क्यों आया मार्केट में, ब्रांडेड इतना पॉपुलर क्यों है, आज सबसे ज़्यादा फ़ोन एप्पल क्यों बेच पाता है, आईपैड क्यों बेच पाता है, सब छोटा छोटा बात है, ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। क्योंकि आपके दिमाग में उसका फतूर है, और जब तक आपके पास फतूर नहीं होगा ना, जब तक आप जुनूनी नहीं होंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल आसान सी चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने आप को सही दर्जा दीजिए, है ना, अपना गट लाइए, अपना एक तो बोलते हैं ना कि हाँ मैं इससे नीचे बात ही नहीं करता, पहले वो सब कुछ लाइए। चीज़ें अपने लिए बढ़िया करिए। कमतरी किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि मेरे को रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, कभी नहीं आएगा। ये बहुत ऐसा एनर्जी है जो इस एनर्जी का बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब रन करता है। बोलते हैं ना कि आदमी का जूता से उसकी औकात पता चल जाता है। तो आपका ऐसा क्यों बोला गया? पुराने लोग इस तरह की कहावत क्यों छोड़ के गए? राकेश जी समझ पा रहे हैं? पुराने लोगों ने इस तरह की बातें करी है ना कि किसी का औकात जानना है तो उसका चप्पल या जूता से जान जाओगे। किसी का घर में मान लो कुटुमदारी में गए हो तो कुछ नहीं, तुम उसका बाथरूम जाके चेक करो। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि अगर टॉयलेट अगर नीट एंड क्लीन है, इसका मतलब उसकी घर की व्यवस्थाएं नीट एंड क्लीन है, यानी तुम अच्छे संस्कारी घर में गए हो, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें बुजुर्गों ने बोली है, इसका मीनिंग है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और आपकी लर्निंग्स, आपकी वाइब्रेशंस, आपका जो एक्साइटमेंट है वो शो करते जाइए। आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, जितना बोला जा रहा है उसको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सारा काम छोड़ के रिजाइन दे दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ भूखे नहीं मरेंगे, और बहुत बड़ा करेंगे। आज जिससे कर रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा करेंगे। मैं इसको लिख के दे सकता हूँ कोर्ट पेपर में, ठीक है ना। करिए। ऑफ कर रहा हूँ सेशन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत का नाम पूरे जगत में ले जाने के लिए। हम एक एक कण जो है ना बहुत बड़ा है। हम लोग भारत हैं, भारत, ठीक है ना। भारत का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अपने लर्निंग साझा कीजिए।